Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the social certification. Social certification is the most important topic here. And the next and last topic here, certification and caste. Certification and caste, that's important here. Under the caste system, a status is a heredity. It is a based on birth. It is a properly as a scribe status. That's important. It is a based on birth. It is a purely an scribe status. Once such a position are assigned, they cannot be advanced and improve their social status in any way. The caste as a major types of social certification does not facilitate vertically social mobility. That's important line here. The caste as a major types of social certification does not facilitate a vertically social mobility here. The next, social certification and class. Social certification and class here. Class is an open system. Class is an open system. Under this system, vertical mobility is absolutely free. Under the system, vertical mobility is absolutely free. The movement from one status to another has a no barrier. There is a no barrier, and status is based on achievement. The status is belong here based on achievement. It is determined by the talent, wealth, money, intelligence, power, education, income, etc. of a person, and there is no inheritance or parental status. That's important line here. There is no inheritance of parental status here. The next here, gender. Gender is important. Like a caste and class, gender is another kind of social certification system. Like a caste and class, gender is another kind of social certification system. Gender phase is the oldest and permanent source of social certification. There is a gender phase is the oldest and permanent source of social certification. But within there is a border arches of caste and class and gender cut across the caste and class. In present day Indian society, caste and class or gender are dynamic phenomenon which vary between two group, communities, and religions. That's important here. The present day Indian society, caste, class, and gender are dynamic phenomenon here, and which vary between two groups, communities, and religions here. Recently, here have a witness as a thorough and spirited discussion on gender. It has acclaimed critical address within the Indus as the concept and as a set of practice has occurred during the last 3 decades. That's important here. The origin of the concept gender can be traced to the 19th century women as a movement and is a Marxism. There is a Marxism that's important. There is a origin of concept gender can be traced to be a 19th century. There is a woman as a movement and Marxism, but it is a seem to be have a first appear among to the American feminists and who want to be reject a biological determinism here. There is a reject here of biological determinism here, and feminists to refer to a term gender than sex.
But the term gender means much more than sex and more inclusive than a sex. It is a socially constructed category rather than to the biologically determined. The gender of man is the masculine and a woman are feminine. And neither a man or not a woman is a sex alone. Gender refers to their social, constructed and culturally determined role that a man and woman play in their day-to-day lives. And gender is the most pattern or significant and numerous useful and ethical concept used by the feminists. That's important here. It is a matter of social descriptions or social cultural construction and provide a deeper analysis of the inequalities and existing between the male and female. It is a refer to the social institutionalization of sexual difference. In a feminist literature, gender is not a value-free concept, rather a value-loaded term and has acquired new dimension. It is a conceptual tool for analysis and is used to be highlight different structural relationship of the inequality between man and woman. That's important here. It is a conceptually tools for analysis and is there used to be highlight different structural relationship of the inequality between man and woman. That's important. As a social constructed difference and relation between males and females, it is a vary from time to time and from place to place. That's important. There is a social constructed difference and relations between males and female. It is a vary from time to time and from place to place. Gender is defined as a social construction of relation between woman and man and among various group of women and men. Feminists consider a gender as the social, cultural manifestation of beginning a man or woman. That's important. There is a gender is defined as the social construction of relation between man and woman and among there is a various group of man and woman here. That's important. And let's see different types of things of sociologists here. First come here according to Anne Kabir. Anne Kabir, that's important. Gender is a seen as there a process by which the individual who are born into the biological categories of male or female become the social categories of man and woman through the equations of the locally defined attribute of the masculinity and femininity. That's important here. There is a most important things here and cap here. That's important. And the second here, according to the Masfield, that's important thinkers here. The gender can be defined as a notion that offers as a set of framework within which the social and ideology, construction, and representations of the difference between sexes and explained. That's important things here are given by a Mansfield here. That's important here. The next here, thinkers according to the ILO. That is the most important here, ILO here. Gender refer to the social difference and relation between man and woman which are the learned which vary widely is among our societies and cultures and change over time. That's important given theory here. The gender refer to the social difference and relation between man and woman which are learned which is a very widely is among the societies and culture and change over time. Thus the gender involves a power structure. Gender involves as a power structure and economical relationship here. It is used to be analyzed the role, responsibilities,
constraints needs of man and woman in all area. It encompasses the social division and culture distinction between man and woman. It is a play an important role in the shaping of institution and practice in every society. That's an important point because gender involved to power structure and economical relationship here. Gender is here, power structure and economical relationship here. That's important. And let's see gender and sex here. Gender and the sex. That's an important topic here. The term gender does not replace the term of sex. It is a necessary to be distinguished between the sex and gender. The distinction between sex and gender is fundamental and sign many differences between males and females are not a biological in a origin. That's important here. That's important because the distinction of between sex and gender is a fundamental and sign many differences between males and females are not a biological in origin. Sex refers to be a physical difference of body, where as a gender refers to be social, cultural, and psychologically difference between two males and females. That's important here. Gender and sex. Sex refers to the biological difference between male and female, which are much more the same over time and space, whereas a gender refers to the socially and culturally constructed difference and relation between males and females, which vary from place to place and from time to time. Sex refers to the male and female, whereas a gender refers to the masculinity and femininity here. And gender is a structural feature of society. That's important point here. Sex refers to the biological difference between male and female, which are not more than the same over time and space, whereas gender refers to socially and culturally constructed difference and relation between male and female. That's important point here from exam view. यहाँ पर जो हम टॉपिक कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पॉइंट है सशक्तिकरण और जाति। देखिए सशक्तिकरण और जाति काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। देखा जाए सशक्तिकरण जाति तो जाति व्यवस्था के तहत स्थिति वंशागत भी होती है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो जाति जो होती है वंशागत यानी हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। वंशागत का मतलब होता है पूर्वजों से चली आ रही परंपरा, और यह देखा जाए तो जन्म पर आधारित होती है। जाति जो हमारी होती है जन्म पर आधारित होती है और यह पूरी तरह से एक प्रदंत स्थिति है। प्रदंत स्थिति का मतलब होता है जिसको आपको जन्मजात प्राप्त हुआ है, जिसको बदलना मुश्किल होती है। एक प्रदंत होता है, एक अचीव होता है, यानी जो है हम अचीवमेंट करते हैं, लेकिन ये जो है प्रदंत ये हमें जन्मजात प्राप्त होती है और ये आपका वंशागत प्राप्त होगी। एक बार ऐसे पद सौंपने के बाद वे किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी जिस जाति में आपने जन्म ले लिया है वो आपका जन्मजात आधारित हो गई है और एक बार सौंपे जाने के बाद वो किसी भी तरह से आपसे अलग नहीं हो सकता है। वो कोई ना कोई रूप में आप में सदैव ही विद्यमान रहेगा और अपनी समाज स्थिति में सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल सी बात है देखा जाए तो लड़का लड़की होना ये जन्मजात आधारित होती है और आप जीवन में कभी भी इसको बदल नहीं सकती। लेकिन देखा जाए तो आधुनिक युग है, यहाँ पर बहुत कुछ जो है नई टेक्नोलॉजी कारण विकास हुआ है, तो आज ये भी बात यहाँ पर अधूरी साबित होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमें जन्मजात आधारित होती है उसे हम प्रदंत कहते हैं और इसको जीवन में कभी बदली नहीं जा सकती है और इसको सुधारना भी नहीं जा सकता है। इसलिए सामाजिक सशक्तिकरण के एक प्रमुख प्रकार के रूप में जाति ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता के सुविधाजनक नहीं बनाती है।
इसलिए इसको सुविधाजनक बनाना संभव नहीं है, क्योंकि ये जन्म पे आधारित होती है। सामाजिक सशक्तिकरण और वर्ग। देखिए, सामाजिक सशक्तिकरण और वर्ग देखा जाए तो क्लास की अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग एक खुला प्रणाली है। वर्ग जो है एक, यानी क्लास जो है एक खुली प्रणाली है, और इस प्रणाली के तहत वर्टिकल मोबिलिटी बिल्कुल मुफ्त है, यानी इसमें कोई भी आ सकता है। खुली प्रणाली है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने में कोई बाधा इसमें नहीं आती है। कोई भी व्यक्ति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बहुत ही आसान तरीके से जा सकता है। इसमें स्थिति उपलब्धि पर आधारित होती है कि जीवन में आपने जो उपलब्धि हासिल किया है उसके अंतर्गत ये आधारित होती है, और यह व्यक्तियों की प्रतिभा, धन, वृद्धि, शक्ति, शिक्षा, आय आदि से निर्धारित होती है। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये अपनी क्षमताओं के अनुसार जो है इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आपकी प्रतिभा भी शामिल हो सकता है, धन में वृद्धि, शक्ति, शिक्षा, आय आदि निर्धारित होती है। माता पिता की स्थिति कोई विरासत नहीं है इसमें, यानी माता पिता की स्थिति और विरासत में मिलने वाली इसमें कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो ये अपने आप हम अर्जित कर सकते हैं, और इसमें देखा जाए तो कोई बाधाएं नहीं होती है। ये बिल्कुल खुलापन होता है, कोई भी अपनी स्टेटस को जो है यानी क्लास को, वर्ग को चेंज कर सकता है, क्योंकि ये हमें जन्मजात आधारित नहीं होती है। हम अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से जो है वर्ग को चेंज कर सकते हैं। यदि आगे बात करें तो लिंग काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, यानी जेंडर। जाति और वर्ग की तरह लिंग भी एक अन्य प्रकार की समाज सशक्तिकरण प्रणाली है। यानी देखा जाए तो जाति और वर्ग जिस तरह से समाज सशक्तिकरण की प्रणाली है, उसी प्रकार से जो है लिंग एक नया और अन्य प्रकार की प्रणाली है। और इसको नया कहना गलत होगा, क्योंकि जाति और वर्ग जब नहीं थी तो उस समय लिंग अवश्य थी। लिंग शायद सामाजिक भेदभाव का सबसे पुराना और अस्थायी सूत्र माना गया है, क्योंकि लिंग जब जाति और वर्ग नहीं थी उस समय में विद्वान था, और देखा जाए तो उस पुराने समय में जो है भेदभाव लिंग पे आधारित होती थी। लेकिन जाति और वर्ग के व्यापक पदानुक्रम के भीतर लिंग जाति और वर्ग से परे है। देखा जाए तो लिंग जो है जाति और वर्ग से काफ़ी दूर है। वर्तमान भारतीय समाज में जाति, वर्ग और लिंग गतिशील घटनाएं हैं, जो समूहों, समुदाय और क्षेत्रों के बीच विभिन्नता लाती है। हाल के वर्षों में लिंग पर गहन और व्यापक चर्चा देखी गई है। इसने पिछले 3 दशकों के दौरान एक अवधारणा और प्रथाओं के एक सेट के रूप में एंडर के भीतर महत्वपूर्ण पते का दावा किया है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हाल के वर्षों में देखा जाए तो लिंग पर बहुत गहन और व्यापक चर्चा हमें देखने को मिला है, और हर क्षेत्र में इसने अपनी 3 दशकों के दौरान एक अवधारणाएं और प्रथाओं को जो है घर कर दिया है, और लिंग का आज महत्व जो है और भी काफ़ी बढ़ गया है। लिंग अवधारणा की उत्पत्ति का पता 19वीं सदी के महिला आंदोलन और मार्क्सवाद में लगाया जा सकता है, क्योंकि ये समय काल थी जहाँ पर लिंग अवधारणा की उत्पत्ति को मुख्य सूत्र के रूप में देखा गया। यानी देखा जाए तो लिंग अवधारणा की उत्पत्ति जो है हम 19वीं सदी के महिला आंदोलन के अंतर्गत जान सकते हैं, जब मार्क्स ने अपनी मार्क्सवादी सिद्धांत दिया था, उसके अंतर्गत इसका काफ़ी उजागर हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि यह पहली बार अमेरिकी नारीवादियों के बीच सामने आया, जो जैविक नियमितवाद को अस्वीकार करना चाहते थे, और नारीवाद लिंग की अपेक्षा लिंग शब्द को अधिक पसंद करते हैं। देखा जाए तो यहाँ नारीवाद है, आप नारीवाद से कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, फेमिनिज्म से। तो आपको बता दूं मैं कि यहाँ तिरपान स्टडी सेंटर ने नारीवाद के ऊपर जो है अच्छा सा वीडियो है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो नारीवाद की वीडियो ज़रूर देखिए। इससे आपको नारीवाद के बारे में सारी बातें जो है साफ होगा, क्योंकि नारीवाद काफ़ी महत्वपूर्ण है और नारियों के अंतर्गत है। नारीवाद लिंग की अपेक्षा लिंग शब्द को अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि नारीवाद कहने से गलत है। लिंग में दोनों शब्द आते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों को ही लिंग के अंतर्गत देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम नारीवाद कहते हैं तो नारीवाद जो है एक तरह का जो है उपेक्षा की जाती है, जिसको जो नारी है वो स्वीकार नहीं करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन लिंग शब्द का अर्थ सेक्स से कहीं अधिक है, और सेक्स से कहीं अधिक समावेशी भी है।
यह जैविक रूप से निर्धारित होने के बजाय सामाजिक रूप से निर्मित श्रेणी है। पुरुष का लिंग पुल्लिंग होता है और स्त्री का लिंग स्त्रीलिंग होता है। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर लिंग का अर्थ दोनों ही होते हैं। अगर हम देखें तो पुरुष का लिंग पुल्लिंग होता है और स्त्री का लिंग स्त्रीलिंग होता है। तो इसलिए लिंग जो शब्द यहाँ पर बताई गई है वो दोनों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताती है और इसमें जो है भेदभाव भी नहीं दिखाती है, क्योंकि लिंग दोनों के लिए होता है। क्योंकि हम जानते हैं अगर हम स्त्री की बात कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग कहेंगे, अगर पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं तो पुल्लिंग कहेंगे, लेकिन लिंग जो है दोनों सेक्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखाया गया है। लिंग को अगर हम देखें तो लिंग ना तो कोई पुरुष और ना ही कोई महिला, केवल यौन संबंध रखती है। यानी देखा जाए तो यह लिंग को काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा मिला है कि लिंग ना तो कोई पुरुष के लिए है और ना ही कोई महिला, इसमें सिर्फ केवल यौन संबंध रखते हैं। लिंग का तात्पर्य सिर्फ ये होता है कि सामाजिक रूप से ये निर्मित है और सांस्कृतिक रूप से निर्धारित भूमिका से है जो पुरुष और महिलाएं अपने दैनिक जीवन में निभाते हैं। यानी लिंग का मतलब सिर्फ यहाँ पर इतना ही देखा जा सकता है कि पुरुष एवं महिलाएं जो हैं अपने दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, जिस रूप से करते हैं, वो पुरुष और महिलाओं के रूप में परिभाषित करता है। लिंग नारीवादियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण और अत्यधिक उपयोगी विश्लेषणात्मक अवधारणा थी। नारीवादियों ने लिंग को जो है काफ़ी पसंद किया था और लिंग ही शब्द का जो है उन्होंने उपयोग भी किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यह सामाजिक आरोप एक सामाजिक संस्कृति निर्माण का मामला है और पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूदा असमानताओं का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। यह लैंगिक अंतर के सामाजिक सत्याकरण को संदर्भित करता है और नारीवादी साहित्य में लिंग एक मूल्य मुक्त अवधारणा नहीं है, बल्कि एक मूल्य आधारित शब्द है और इसने नए आयाम प्राप्त कर लिए हैं और यह विश्लेषण के लिए एक वैचारिक उपकरण है और इसका उपयोग पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता के विभिन्न सृजनात्मक संबंधों को उजागर करने के लिए किया जाता है। देखा जाए तो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित मतभेद हैं। यानी यहाँ पर बात साफ कर देता है कि लैंगिक अंतर को समाज स्थानांतरण के संदर्भ में किया गया है, जिसमें देखा जाए तो नारीवाद साहित्य में भी लिंग का एक मूल्य अवधारणा नहीं है। यानी नारीवाद साहित्य अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि नारीवाद साहित्य में लिंग एक मूल्य मुक्त अवधारणा नहीं है, बल्कि एक मूल्य आधारित शब्द है। सिर्फ इसको शब्दों के रूप में यहाँ पर मान्यता मिली है और इसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों की असमानताओं के सृजनात्मक संबंधों को उजागर करने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर आप लिंग की बात कर रहे हो तो इसमें ना तो पुरुष होते हैं ना महिलाएं होती हैं, दोनों के दोनों मौजूद होते हैं इसमें। यानी इसमें पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होते हैं, किसी एक के लिए इसका जो उपयोग नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमने समझा है कि लिंग का मतलब तभी लिंग सार्थक होता है जब वहाँ पर पुल्लिंग लगा दिया जाता है या स्त्रीलिंग लगा दिया जाता है। पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित मतभेद और संबंध समय समय पर जो है स्थान स्थान पर बने रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से जो बात निर्मित होती है, जो मतभेद होती है, उसका संबंध समय समय पर और स्थान स्थान पर अलग होती है। तो ये तो जर्नल सी बात है, जहाँ पर आप जाओगे, जहाँ पर रहोगे, उसी प्रकार से आपको जो है संबंध प्राप्त होंगे और यही संबंध जो है इसकी बात को उजागर भी करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिंग को महिलाओं और पुरुषों के बीच तथा महिलाओं और पुरुषों के विभिन्न समूहों के बीच संबंधों के समाज निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर लाइन आ गया है कि लिंग को महिलाओं और पुरुषों के बीच, एक महिलाओं और पुरुषों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध को समाज निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है। नारीवाद लिंग को पुरुष या महिला होने की समाज संस्कृति अभिव्यक्त मानती हैं। तो नारीवाद का अपना इसमें विचारधारा है और नारीवाद जो है लिंग शब्द का ही जो उपयोग करती हैं, क्योंकि लिंग शब्द का उपयोग करने से पुरुष या महिला होने की समाज संस्कृति अभिव्यक्त माने जाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसी बात को बहुत से जो है समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार रखे हैं। तो चलिए
समाजशास्त्रियों के विचार सुने लिंग के अंतर्गत। तो लिंग के अंतर्गत जो है समाजशास्त्री ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम बात करें तो एन कबीर के अनुसार, जिन्होंने साफ शब्दों में जो है लिंग को परिभाषित किया था, और एन कबीर ने कहा था कि लिंग को उस प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसके द्वारा पुरुष या महिला की जैविक श्रेणी में पैदा होने वाली व्यक्ति पुरुषत्व या स्त्रीत्व के स्थानीय रूप से परिभाषित गुणों के अधिग्रहण के माध्यम से पुरुष और महिलाओं की समान श्रेणी बन जाती हैं। यानी इन्होंने जो है साफ शब्दों में इस बात कहा है, गुणों को महत्व दिया है कि गुणों के अंतर्गत ही जो है एक पुरुष पुरुष कहलाएगा, एक महिला महिला कहलाएगी, क्योंकि गुण ही मेन होती हैं, क्योंकि ये जैविक श्रेणी में पैदा होने वाले व्यक्तियों को लिए बताई गई है। यानी बायोलॉजिकल जो होते हैं उन महिलाओं और पुरुषों में जो है पुरुषत्व और स्त्रीत्व की स्थानीय रूप में परिभाषित गुणों के आधार पर किया गया है। पुरुष होगा तो पुरुष की तरह व्यवहार करेगा, स्त्री होगा तो स्त्री की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि ये एक जैविक श्रेणी के अंतर्गत देखा जा सकता है, जैविक गुण हैं। तो ये एन कबीर ने कहा था, और ये इसके माध्यम से पुरुष और महिलाओं के सामाजिक श्रेणियों में बन जाते हैं। ये साफ शब्दों में यहाँ पर एन कबीर ने कहा था। उसके पश्चात देखें तो ए मैसफील्ड के अनुसार, ए मैसफील्ड ने भी अपनी बातों को यहाँ पर सार्थक सिद्ध किया लिंग के अंतर्गत। उन्होंने कहा कि लिंग को एक ऐसी धारणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो रूपरेखाओं का एक सेट प्रदान करती है। जरना सी बात है, लिंग जो होती है हमें एक जो है रूपरेखा हमें सेट प्रदान करती है, जिसके भीतर सामाजिक और वैचारिक निर्माण और लिंगों के बीच मतभेदों को प्रतिनिधित्व समझा जाता है। यानी इसमें देखा जाए तो लिंग के बीच जो है मतभेद जो उत्पन्न होती है उसको सामाजिक और वैचारिक निर्माण को यहाँ महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ए मैसफील्ड ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ उजागर किया है लिंग के अंतर्गत। यदि आगे हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ILO के अनुसार। ILO ने काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ पर दिया था। अब सोचिएगा कि ILO क्या है। दोस्तों ILO जो है काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है, और इसे हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी कह सकते हैं। यानी इसको देखा जाए तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसने भी अपना जो है यहाँ पर मत रखा था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने साफ शब्दों में लिंग के प्रति ये बात कही थी कि लिंग का तात्पर्य पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों और संबंध से है। यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने साफ शब्दों में इस बात को रखा कि लिंग का तात्पर्य पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों और संबंधों से है, जो सीखे जाते हैं, जो समाज और संस्कृतियों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। तो बात तो सही है, यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने साफ शब्दों में बात रखी है कि लिंग का तात्पर्य पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों और संबंधों से हैं, जो सीखे जाते हैं, जो समाज और संस्कृति के बीच व्यापक रूप से भिन्न होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। आगे जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बात कही कि इस प्रकार लिंग में शक्ति संरचना और आर्थिक संबंध शामिल होंगे। इसमें शक्ति संरचना और आर्थिक संबंध भी शामिल किए जाएंगे, और इसका उपयोग सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका, जिम्मेदारियां, बाधाओं और ज़रूरतों का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। इसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक विभाजन, संस्कृति भेद शामिल होते हैं, और यह प्रत्येक समाज में, संस्थाओं में और प्रथाओं के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बात तो सच्चाई है। यहाँ पर ILO ने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखी है कि यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के बीच समाज विभाजन और संस्कृति भेद शामिल रहेंगे, और यह प्रत्येक समाज में, संस्थाओं और प्रथाओं के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो कौन निभाएगा? लिंग निभाएगा। और ये बात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना था, जो कि अभी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखा गया है। देखा जाए तो लिंग और जेंडर, देखिए लिंग और लिंग यानी क्या है लिंग और लिंग। लिंग शब्द का स्थान नहीं लेता है। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लिंग और लिंग क्या है। लिंग शब्द लिंग का स्थान नहीं लेता है। लिंग और लिंग के बीच अंतर करना आवश्यक है।
लिंग और लिंग के बीच अंतर मौलिक है, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं के बीच कई अंतर मूल रूप से जैविक नहीं होते हैं। और ये बात आपको भी पता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच कई अंतर मूल रूप से जैविक नहीं होते हैं। लिंग का तात्पर्य शरीर के शरीर अंतर से है। यहाँ पर लिंग का जो है अर्थ सिर्फ इसी बात से लगाई जा सकती है कि शरीर के ढांचा में, शरीर के स्ट्रक्चर में अंतर से लिया जाता है, जबकि लिंग का तात्पर्य पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक, संस्कृति और मनोवैज्ञानिक अंतर से है। देखिए, एक लिंग जो होता है वो पुरुष और महिलाओं के शारीरिक अंतर को रिप्रेजेंट करता है, और एक लिंग जो होता है वो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, संस्कृति और मनोवैज्ञानिक अंतर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर लिंग और लिंग का अर्थ समझ गए होंगे कि एक लिंग जो होता है पुरुषों और महिलाओं के बीच के मूल्य जैविक नहीं होते हुए भी शारीरिक अंतर को रिप्रेजेंट करता है, और एक लिंग जो होता है महिला और पुरुष में सामाजिक, संस्कृति और मनोवैज्ञानिक अंतरों को जो है यहाँ पर प्रभाषित करती है। लिंग का तात्पर्य पुरुष और महिलाओं के बीच जैविक अंतर से है, जो समय और स्थान के साथ बहुत अधिक सामान्य रहते हैं। कहते हैं समय और स्थान के साथ काफ़ी समानता देखने को हमें मिल जाता है, जबकि लिंग का तात्पर्य पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित अंतर और संबंधों से जो है, जो अलग अलग और समय समय पर काफ़ी भिन्न देखने को मिलता है। लिंग का तात्पर्य पुरुषों और महिलाओं से भी है, जबकि लिंग का तात्पर्य पुरुष और स्त्रीवाद से भी है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि लिंग किसी समाज की सृजनात्मक विशेषता भी है। तो यहाँ पर आपने लिंग का अर्थ समझ गए होंगे कि लिंग जो होता है एक पुरुष और स्त्री के जैविक अंतरों को रिप्रेजेंट करता है, और एक जो लिंग होता है वो सामाजिक, संस्कृति रूपों को जो है प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत हमने हर एक बात को, हर एक पॉइंट को जो है आपके समक्ष रखा, और ये टॉपिक जो रहेगा कई मानने में हर जगह इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे असाइनमेंट के लिए हो, चाहे पेपर के एग्ज़ाम के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए, हर जगह जो है अपनी महत्ता को बिखरेगा। सिलेबस के अंतर्गत भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको समझना है। यहाँ पर अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ लेते हो तो आपके पास कुछ भी समझने को शेष नहीं रह जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर सच्चाई में आपको समझ में आया है और चाहते हो कि दूसरे बच्चों को भी समझ में आए, तो जरना सी बात है दोस्तों, चैनल को जो है शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी जो है दूसरे बच्चों का केयर हो सकता है। और तिरपान स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि शेयर ही केयर है। तो शेयर की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। पहली बार मेरे वीडियो चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचना नहीं है, तो सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगी कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। ये आपके लिए फ़ायदे की बात की जा रही है। आप करो चाहे ना करो, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको तो पता ही है कि तिरपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, और इसमें सारे वीडियो उपलब्ध हैं समझ के लिए, ज़रूरी के लिए। जैसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।